So we are going to start linear equation in two variable exercise 3.3. So first we'll understand how we can solve a system of linear equation by substitution method. Okay, out of four methods, it is one of the method to solve a system of linear equations. So first we'll watch the concept. In the last video, we saw what a system of equations is, and in this video I'm going to show you one algebraic technique for solving systems of equations where you don't have to graph the two lines and try to figure out exactly where they intersect. This will give you an exact algebraic answer, and in future videos we'll see more methods of doing this. So let's say you had two equations. One is x plus 2y is equal to 9, and the other equation is 3x plus 5y is equal to 20. Now, if we did what we did in the last video, we could graph each of these. These are lines. You could put them in either a slope-intercept form or point-slope form. They're in standard form right now. And then you could graph each of these lines, figure out where they intersect, and that would be a solution to that. But it's sometimes hard to find, just by looking, figure out exactly where they intersect. So let's figure out a way to algebraically do this. And what I'm going to do is the substitution method. I'm going to use one of the equations to solve for one of the variables, and then I'm going to substitute back in for that variable over here. So let me show you what I'm talking about. So let me solve for x using this top equation. So the top equation says x plus 2y is equal to 9. I want to solve for x, so let's subtract 2y from both sides of this equation. So I'm left with x is equal to 9 minus 2y. This is what this first equation is telling me. I just rearranged it a little bit. The first equation is saying that. So in order to satisfy both of these equations, x has to satisfy this constraint right here. So I can substitute this back in for x. We're saying this top equation says x has to be equal to this. Well, if x has to be equal to that, let's substitute this in for x. So the second equation will become 3 times x. And instead of an x, I'll write this thing, 9 minus 2y. 3 times 9 minus 2y plus 5y is equal to 20. That's why it's called a substitution method. I just substituted for x. And the reason why that's useful is now I have one equation with one unknown, and I can solve for y. So let's do that. 3 times 9 is 27. 3 times negative 2 is negative 6y. Plus 5y is equal to 20. Add the negative 6y plus the 5y. Add those two terms. You have 27. See, this will be minus y is equal to 20. Let's subtract 27 from both sides. And you get, let me write it out here. So let's subtract 27 from both sides. The left-hand side, the 27's cancel each other out, and you're left with negative y is equal to 20 minus 27 is negative 7. And then we can multiply both sides of this equation by negative 1. Multiply both sides by negative 1, and we get y is equal to 7. So we found the y value of the point of intersection of these two lines. Y is equal to 7. Let me write it over here. Y is equal to 7, so I don't have to keep scrolling down and back up. Y is equal to 7. Well, if we know y, we can now solve for x. X is equal to 9 minus 2y. So let's do that. X is equal to 9 minus 2 times y, 2 times 7. Or x is equal to 9 minus 14. Or x is equal to negative 5. So we've just, using substitution, we've able to found a pair of x and y points that satisfy these equations. The point x is equal to negative 5, y is equal to 7, satisfy both of these. And you can try it out. You could try it out. Negative 5 plus 2 times 7, that's negative 5 plus 14. That is indeed 9. You do this equation. 3 times negative 5 is negative 15 plus 5 times y plus
So here we have seen in this method, a substitution method is what? From first equation we'll solve either x or y, right? So from one equation we'll solve either x or y and we'll put that value in second equation. Then we'll get, okay, a value of one variable. After getting one variable, if we'll substitute that value in any one equation, then we'll get other value. Okay, since we are substituting, that's why its name is substitution method. So now we'll start exercise. So exercise 3.3. So first question I'm showing to you. Answer 1, first question. So x plus y equals to 14. X minus y equals to 4. So we'll mark this equation as equation number 1 and this equation as equation number 2. Now from equation 1, we'll solve either x or y. Any one we can solve. कोई भी हम solve कर सकते हैं, चाहे x हो चाहे y. So I'm solving here y. तो y कितना हो जाएगा? 14 minus x, right? Now this value of y just will put here, okay, in second equation. Just in place of x, sorry, in place of y we have to put, not in, because we have found the value of x, value of y. So we'll put this value of y here in this part. So equation 2 implies x minus value of y is 14 minus x equals to 4. Now this is an equation of one variable, right? Sakshi, equation क्या है? Equation in one variable. अब जो हम क्लास 9th में सीखा है या 8th में सीखा है, वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं? x इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -14 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस x इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 4, राइट? अब देखो 14 को राइट में लेके आओ तो साइन चेंज होगा. जो भी रूल है लीनियर इक्वेशन का वो हमें फॉलो करना है. 14, सो 2x 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18. सो x इक्वल्स टू, अब 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 किस में आ जाएगा? डिवीजन में. सो x इक्वल्स टू 9 वी गॉट. चलो x का वैल्यू मिल गया हमें. आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ x, जस्ट दिस वैल्यू ऑफ x पुट इन आइदर 1 और 2. सो 1 में पुट करते हैं. इक्वेशन 1 एम्प्लाइज 9 प्लस y इक्वल्स टू 14. सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 14 माइनस 9. So y equals to 14 minus 9, how much? 5. So therefore final answer is x equals to 9, y equals to 5. This method to solve a system of linear equation is called substitution method. Okay, Irfan, understood? Sakshi,
Understood? Any question in your mind? Sir, no, sir. Okay. And now we'll start what problem. Here, second, third, fourth, fifth, sixth, all questions you will try by similar method. क्योंकि हम लोग what problem में भी substitution method use करेंगे. Sir, how will we solve the fifth one, the root? अच्छा, root वाला. चलो fifth one. Yes. I'm showing fifth one. So answer 1 5th. अच्छा, क्या है? रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0. तो इसे दो इक्वेशन नंबर 1. फिर रूट 3x माइनस रूट 8y कितना हो गया? 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्या प्रोसेस है? इक्वेशन 1 विल कंसीडर and we'll solve either x or y. तो कितना होगा? रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0. अगर हम y को सॉल्व करते हैं तो इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे. रूट 3y इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 2, सॉरी यहाँ पे साइन क्या होगा? चेंज होगा, माइनस रूट 2x. सो y इक्वल्स टू, now root 3 bring this side, तो minus root 2 upon root 3x. ठीक है. अब देखो y इक्वल्स टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x. अब जो y का वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 2 implies रूट 3 x माइनस रूट 8 इंटू कितना होगा? माइनस रूट 2 बाय रूट 3x. सो दिस इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या मिल रहा है? रूट 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट 8 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16 आएगा, मतलब 4 बाय रूट 3x इक्वल्स टू 0. नाउ टेक एलसीएम. अगर हम एलसीएम ले लेते हैं रूट 3, सो रूट 3 का साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 0. अब 3x प्लस 4x कितना हो गया? 7x, और रूट 3 को इधर लाओगे 0 आएगा. सो x इक्वल्स टू 0/7. 0/7 कितना होता है आज साक्षी? साक्षी 0/7 कितना होगा? सर 0/7 0/7 होगा. सर अगर डेनोमिनेटर में 0 होता तब अनडिफाइंड होता ना. लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में क्या हुआ? 7 है और न्यूमरेटर में 0 है, तो कौन सा नंबर मिलता है? ये काफी सारा स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है. जो 0/7 या 0/4 या 0/2 या 0/3, अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो कोई भी नंबर है, उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. ठीक है. ओके सर. सर ऐसा सेम चीज वो अगर नीचे डेनोमिनेटर में होता है तब भी तो 0 ही होता है ना. डिनोमिनेटर में क्या होता? सपोज लाइक ये 0 तो अभी न्यूमरेटर में है, वो अगर डेनोमिनेटर में होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना. हाँ, अगर मान लो न्यूमरेटर में कोई नंबर है और नीचे 0 है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो अनडिफाइंड होगा. ठीक है. लेकिन अगर न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर क्या हुआ? कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो उसका रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा. नाउ इसका वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, तो यहां पे अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0. सो y इक्वल्स टू 0 अपॉन, अब यहां पे क्या हो जाएगा? रूट 3 को, क्योंकि रूट 3 को नीचे लेके आओगे तो कितना होगा? 0/√3. तो हमने बोला डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर है, वो कितना होगा? 0.
So it means we are getting x equals to 0 or y also equals to 0. Any problem? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Okay, now understood, Irfan? So Irfan is I think Irfan is playing game. Game खेल रहे हो क्या? हाँ. Sound is not coming. Your sound I am not getting. गेम खेलने खूबी देरी लगे আমার নেটটা থেকে. अच्छा ठीक है. Okay. So now next we are starting word problem, right? But this question number 2 also very good question. Sometime in examination, board exam also came this question. That's why I'm showing question number 2. Now answer 2. Just check this. Solve 2x plus 3y equals to 11. 2x minus 4y equals to minus 24. Okay. So solve this. यहाँ पे कुछ नहीं बोला है ना, कोई किस मेथड में सॉल्व करोगे? They have not mentioned, but we are doing substitution method, so we'll use substitution method. So this is equation number 1, और this is equation number 2. अब देखो equation 1 implies 2x plus 3y equals to 11. So 3y equals to 11 minus 2x. So y equals to 11 minus 2x upon 3. अब जो भी y का वैल्यू मिला वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 2 implies, अब इसका जो y का वैल्यू है कहाँ पे पुट करोगे? जस्ट यहाँ y का प्लेस में जस्ट ये वैल्यू पुट कर देना. That's why its name is substitution method. So 2x minus 4 ब्रैकेट डालो क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है सिंगल टर्म नहीं है. सो ब्रैकेट पुट करना है 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड सिस्टमेटिकली वी हैव टू सॉल्व, राइट? अच्छा, अब ए टर्म को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. 2x माइनस डिनोमिनेटर तो 3 वी आर गेटिंग, और ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ. तो 4 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस साइन को रहने देते हैं, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं. तो कितना होगा? 44 माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 24. सर यहाँ जो नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, सर उसे क्या वो राइट हैंड साइड में कैन वी नहीं लेके जा सकते. जब तक हम इधर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इस 3 को इधर नहीं ला सकते. ध्यान में रखो. यहाँ पे पहले एलसीएम करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं. तो 3 एलसीएम हो गया, 3 2 का साथ मल्टीप्लाई होने से कितना होगा? 6x. और माइनस, ध्यान में रखो, ये माइनस दोनों का साथ मल्टीप्लाई होने से साइन चेंज करता है, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज काफी सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है. और अगर एक भी स्टेप मिस्टेक हुआ तो बाकी मिस्टेक होता जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? माइनस 44. और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस 8x इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस 24. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते. 6x है और यहाँ पे 8x है, दोनों पॉजिटिव है. कितना हो गया? 14x माइनस 44 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस 24. आप 3 को लेके आ सकते हो राइट में. 14x माइनस 44 माइनस 24 इंटू 3.
Now 14x नंबर को राइट में लेके जाओ और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 72 और 44 इधर आएगा तो प्लस 44 हो जाएगा, राइट। सो 14x इक्वल्स टू, अच्छा माइनस 72 प्लस 44 कितना आएगा साक्षी बताना, कितना होगा 28 होगा। सो x इक्वल्स टू 14 को नीचे लेके आओ, माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14। सो कितना मिला -2। अब ये -2 चाहे तुम इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में, हम चूज कर रहे हैं इक्वेशन 1। सो 2x प्लस 3y equals to 11. So put the value of x 2 into -2 plus 3y equals to 11. तो कितना हो गया -4 प्लस 3y equals to 11। अब -4 को राइट में लेके आओ, 3y equals to 11 प्लस 4, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। सो y Y is 15 डिवाइडेड बाय 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। लेकिन यहाँ अच्छा x और y तो मिल गया, चलो यहाँ पे पहले सॉल्व करने बोला था तो हम लोग सॉल्व कर लिया। देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 5। लेकिन इसका और एक पार्ट है, देखो ठीक से, यहां पे पूछा है जो हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल्स टू क्या है mx plus नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब जो y और x का वैल्यू आया वो जस्ट पुट कर दो, 5 इक्वल्स टू यहां पे कितना हो जाएगा -2m प्लस 3, -1 will be answer। तो -2m को इधर लेके आओ 2m और ये 3 - 5, 3 - 5 कितना होगा 2m -2 इक्वल्स टू -2 and and will m be इक्वल्स -1। -2/2, so -1, राइट। सो ये तो था सेकेंड का सॉल्यूशंस, राइट। ओके, सो आई एम चेंजिंग स्लाइड। अब आ जाओ यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है। सो 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस आई विल डू एंड 3 क्वेश्चंस यू विल डू एज ए होमवर्क। सो आंसर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, one number is 3 times the other, find them। Let two numbers be x and y। अब इक्वेशन बनाओ। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब x माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई, अगर x ग्रेटर है और y छोटा है तो ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, बड़ा कौन है x ग्रेटर है, इक्वल्स टू 3y। तो यहां पे बेटर है सब्स्टिट्यूशन यूज करना, क्लियर दिख रहा है क्यों, क्योंकि x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 3y, राइट, x इक्वल्स टू 3y in equation 1, right? So if we'll put, then we'll get 3y
माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, सो 3y माइनस वाई कितना होगा? 2y। सर 2y तो कितना हो गया? 26। 13 y का वैल्यू कितना होगा? 26 बाई 2। 13 सो y इक्वल्स टू हमें 13 मिला। अच्छा, अब x y को ना सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 2 एम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 into 13, so 39 we'll get 39. Therefore, two numbers are 13 13 and 13 9. Okay. यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो आंसर थर्ड का थर्ड। The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the total. Find the cost of each bat and each ball. Let cost of one bat equals to rupees X and the cost of one ball equals to rupees Y. Now according to question हम क्या बोल सकते हैं? 7 बैट और 6 बॉल मतलब 7x प्लस 6y प्लस 6y टोटल कितना कॉस्ट हो गया? 3,800। और सेकेंड कंडीशन में सी बाइज 3 बैट मतलब 3x और बॉल कितना है? 5 बॉल मतलब 5y। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1750। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। हालांकि ये इस टाइप का क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड में अगर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा सर, जल्दी भी हो जाता है। हाँ, और एलिमिनेशन मेथड में ये क्या होगा? जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मेथड मेंशन नहीं है तो हम कोई भी रूल कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर 2 इक्वेशन ऐसा आया तो मुझे लगता है जो क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में ही इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज में दे रखा है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे। तो थोड़ा सा हम एलिमिनेशन मेथड में ही करने की कोशिश करते हैं। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? या तो x का कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y का कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अगर हम x का कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 21x प्लस 18y। अच्छा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट है। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 21x प्लस 35y और 7 से मल्टीप्लाई करने से 0।
करेक्ट है? देखो मल्टीप्लिकेशन ठीक है. आफ्टर दैट वी सबट्रैक्ट दिस टू इक्वेशन. तो साइन विल बी चेंज्ड. ये इसका साइन चेंज हो गया, साइन इसका भी चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज होगा. अब देखो इस एक कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. अब नेगेटिव ज्यादा है तो माइनस का साइन. 35 और 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए? 17y. अच्छा यहाँ पे माइनस साइन आएगा. अच्छा 12,250 को 11,400 से माइनस करने से 0, 5 और ये कितना हो गया? 8. मतलब कितना आ गया? 850. अब माइनस और माइनस को काट दो. y इक्वल्स टू 850 बाई 70. 70 कितना बार 85 जाएगा? 550. तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ y आइदर इन 1 और 2. अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन 1 इम्प्लाई कितना है? 7x प्लस We can put in any of these. any, हाँ, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं. तो 6 into 50 अगर तुम्हें लगता है सेकेंड इक्वेशन में पुट करने से ज्यादा बेटर होता तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करना. यहाँ पे कितना है? 3800. अब कितना हो जाएगा? 7x प्लस 300 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3800. तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300. अब 7x इक्वल्स टू क्या मिला हमें? 3500. Sir, I got 500. कितना हो गया? 3500 बाई 7. काटो इसको. 500. सो 500. अब आंसर, फाइनल आंसर जरूर लिखना. Therefore, cost of one pet कितना? रुपीस 500. Cost of one ball कितना? रुपीस 50. Okay, one more questions I am doing. 6th one. ठीक है? तो 3 questions I did. 3 questions you will try. अब आ जाओ 6th question. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. And 5 years, ये क्या था? 5 years hence, और ये है 5 years ago. Jacob's age was 7 times that of his son. What is their present age? तो ये हो गया age type of questions. So answer 3 का 6th. Let present age of Jacob equals to x years and present age of किसका? His son. His son equals to y years. अब according to question अब बनाओ इक्वेशन. 5 years hence एज ऑफ जेकॉब मतलब 5 साल के बाद. अगर प्रेजेंट एज x है तो जेकॉब का 5 साल के बाद एज कितना होगा? x प्लस 5. अच्छा उसका सन का होगा y प्लस 5.
तो बोला Yes, sir. है द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स 3 3 into 5 plus 5. 5. सो यहां से हम x प्लस 5 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं 3x प्लस 15. सो यहां से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे 15 माइनस 5. एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं बट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. Sir, हाँ sir, in the second line, like 3 into y, you have written 3x. oh sorry 3y not 3x. Sorry, here y, it should be y. Okay, here y all. So x equals to 3y plus 10 we got. अब सेकेंड कंडीशन में बोला है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले. तो सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना टाइम्स था? जेकॉब हुआ 7 टाइम्स, मतलब 7 इंटू y माइनस 5. तो यहां पे x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 7y माइनस 35. अब 7y को इधर लेके आओ, x प्लस x माइनस 7y Minus 30 is equal to minus 30. x minus 7y equals to minus 35 plus 5. So Minus 30. x minus 7y equals to कितना हो जाएगा? Minus 30. minus 30. ठीक है. Now put the value of x in equation 2. Now put x equals to 3y plus 10 in equation 2. अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x का वैल्यू कितना था? 3y plus 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. कितना हो गया? माइनस 4y और 10 को इधर माइनस 40. माइनस माइनस काट दो. 40 by 4 equals to 10. Therefore, x equals to 3y plus 10. So 3 into 10 plus 10. So 30 plus 10 equals to 40. So therefore, present age of Jacob, present age of Jacob equals to कितना होगा? 40 years. And सन कितना हो जाएगा? So 10 years. 10 years. Right. So this was substitution method. I hope you understood. साक्षी समझ में आया? Substitution Yes, method. sir. Okay. So suppose in the examination, there is nothing mentioned about the method which we have to take. So we can choose any You of can these. choose any method. That's why I said second questions. Okay. That means question number 3, third one, I did by elimination method. क्योंकि वहां पे Yes, sir. मुझे लगा elimination method ज्यादा easy है substitution method से. So it will be better if you are using other method, because in examination it will not be mentioned which method you will use if you are doing a word problem, right? Okay, sir. ठीक है. So now I am ending a video here. Okay, fine. Thank you.